جو خداوند نے ہم سب کو بخشا ہے، ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستش کے لیے اس کی حضوری میں سب جمع ہوئے اور خوبصورت حمد و ثنا کے وسیلہ سے خداوند ہمارے درمیان تخت نشین ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمارے چرچ میں اچھے گانے اور بجانے والوں کو مہیا کیا ہے اور اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، تاکہ خدا کی خدمت اس کے نام کے مطابق، اس کی شان کے مطابق کی جا سکے۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے آج کا جو عنوان ہے، قوم کی خوشحالی کے لیے بائبل کے اصول۔ کسی بھی قوم کو خدا اپنے بائبل کے اصولوں سے برکت دیتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے وہ اصول دیکھیں گے، کیونکہ باتیں تو کرنے کو بہت ہیں اور ہم سب کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے پاس مفت میں مشورے بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی چیز کی بحالی اور خوشحالی کے لیے، اور خاص طور پر ایک قومی خوشحالی کے لیے اور ایک قومی برکت کے لیے بائبل کے اصول کیا ہیں؟ بائبل کس طرح سے ایک قوم کو برکت دینے کے بارے میں سکھاتی ہے، اور خدا کس طرح سے قوم کو برکت دیتا ہے۔ نمبر 1، خوشحالی کا مطلب۔ خوشحالی کا مطلب اور اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اور صحت پر مشتمل ہے۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم میں روحانی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو ایک خوشحالی کو، ایک برکت کو، ایک ترقی کو، پراسپیرٹی کو ظاہر کرتی ہیں۔ سو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، زبور 33 زبور اس کی 12ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، 33 زبور اس کی 12ویں آیت، مبارک ہے وہ قوم، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے اور سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے انسان کو بنایا، کائنات کو خلق کیا، اور تخلیق کائنات ہے وہ خدا جو قادر ہے، اس نے وہ قوموں کو سنبھالتا ہے، وہ قوموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند زندہ خدا جو ہے، لکھا ہے خدا کے کلام میں، زبور میں ہم نے بھی تلاوت سنی ہے، مبارک ہے وہ قوم۔ کون سی قوم مبارک ہے؟ جس کا خدا خداوند ہے۔ میری چیزوں، دوسری بات، وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا، جس کو اس نے اپنی میراث کے طور پہ برکت بخشی۔ جب خدا ابراہیم سے کلام کرتا ہے تو خداوند اس کو کیا کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، ناطے داروں کو چھوڑ، اور جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا تجھے وہاں جانا ہے۔ اس کو خدا ڈائریکشن دے رہا ہے، اس کے لیے ایک اصول خدا نے رکھ دیا ہے کہ تجھے اپنی فیملی کو، ناطے داروں کو چھوڑنا ہے، اور جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا تجھے وہاں جانا ہے، اور میں تجھے کیا کروں گا؟ خدا کیا کہتا ہے ابراہیم سے؟ میں تجھے برکت دوں گا۔
और तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और एक ब्लेस और एक बाबरकत कौम तुझे ठहराऊंगा। और इब्राहिम खुदा की बात को मानता है और खुदा की मिरास, खुदा की बरकत खुदा की तरफ से उसकी कौम पर ठहर जाती है। आमीन। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं पहला असूल, कौम की खुशहाली के लिए पहला असूल हम देखेंगे इमसाल 14 बाब की 34 आयत। और मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा हवाला जात पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। सदाकत एक कौम को सरबलंद करती है। इसके लिए हवाला देखें। इमसाल 14वें बाब की 34वीं आयत हम खुदा के कलाम में देखेंगे। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। कितनी खूबसूरत बात है कि सदाकत क्या करती है, कौम को सरफराजी बख्शती है। मेरे चीजों, हर कौम चाहती है, हर मुल्क चाहता है कि उसमें खुशहाली हो। हर मुल्क चाहता है, हर कौम चाहती है कि वो सरबलंद हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, हर चीज उस मुल्क में मौजूद हो। लेकिन बाइबल के जो असूल हैं उसके लिए पहला असूल क्या है? सदाकत। मेरे चीजों, खुदा जो है वो चाहता है कि उसकी कौम जो है वो सदाकत से यानी सच्चाई से अपनी जिंदगी गुजारे। जिस कौम में सदाकत नहीं है, जिस कौम में सच्चाई नहीं है, तो मेरे चीजों कैसे सरबलंदी आ सकती है? तो पहला असूल जो है हम 34 आयत में देखते हैं कि पहला असूल क्या है कि 14वें बाब की 34 आयत में सदाकत कौम को क्या करती है? सरफराजी बख्शती है। कौन सरफराजी बख्शती है? सदाकत। अगर कोई सच्चाई से, कोई रास्ते से जिंदगी गुजार रहा है तो खुदा अपने असूल के मुताबिक उससे क्या करेगा? सरफराजी बख्शेगा। पर गुनाह से उम्मतों की क्या होती है? रसवाई है। मेरे चीजों, अगर किसी कौम में गुनाह जो है बढ़ जाता है, और इसकी एग्जाम्पल हमें बाइबल में नजर आती है। आप देख लें कि जब खुदा नैनमा के लिए कलाम करता है तो मेरे चीजों खुदा का यही तकाजा है कि कौम आजिज हो जाए, कौम अपने गुनाह से बाज आ जाए, ये कौम अपने गलत कामों से हट जाए। और फिर खुदा कहता है कि अगर तुम इन कामों से हटोगे और तौबा करोगे, खाकसार हो जाओगे, आजिज हो जाओगे, तो मैं आसमान खोलकर तुमको बरकत दूंगा। हालेलुया। तो किसी भी कौम की खुशहाली के लिए, बरकत के लिए पहला असूल क्या है कि वो अपनी जिंदगियां कैसे गुजारे? सदाकत से, सच्चाई से। सच्चाई अगर नहीं है तो मेरे चीजों किसी भी तौर पे, अगर शख्सी तौर पर देख ले कि इंसान अगर झूठ पे झूठ बोलता जाएगा, अगर वो झूठ पर अपनी किसी भी चीज की बुनियाद झूठ पर रखेगा, चाहे वो उसका बिजनेस है, चाहे वो किसी तरह के अपने ऑफिस में किसी के मुताबिक जॉब कर रहा है या अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है, अगर कोई शख्स झूठ ही बोलता जाएगा तो उसका एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ और झूठ पर झूठ जब बोलता जाएगा तो वो कभी भी सरफराज नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम ज्यादातर देखी चीजों को फॉलो करते हैं, बाइबल के असूलों पर नहीं चलते। हमें शख्सी तौर पर, एक कौम के तौर पर, हमें शख्सी तौर पर सदाकत को, सच्चाई को जो बाइबल हमें सिखाती है उसके मुताबिक अपना लाइफस्टाइल अपनाना है। हम ये सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा तो, हम जब दुनिया में जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा निजाम ही ऐसा है। इस निजाम में, इस सिस्टम में जब तक हम झूठ नहीं बोलते हमारा गुजारा ही नहीं है। हम तो मर जाएंगे, हम तो कारोबार ही नहीं कर सकते जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो बरकत कैसे आएगी? खुशहाली कैसे आएगी? तरक्की कैसे होगी? सिर्फ बातों से या सिर्फ नारों से? तरक्की जो है किसी भी कौम की, वो बाइबल के, खुदा के बनाए गए असूलों से खुदा की बरकत आती है। और उसके लिए पहला असूल क्या है कि सदाकत यानी सच्चाई से, रास्ते से
अपना कारोबार करना, किसी सतह पर भी हम शख्सी तौर पर या हम उसको मजहबी तौर पर देख लें या हम उसको सियासी तौर पर देख लें, माशरती तौर पर देख लें, हमें फर्दन एक दूसरे के साथ सच्चाई से अपने कारोबार को और सदाकत से चलना है ताकि खुदा की बरकत आए। उसके बाद दूसरा असूल ज़बूर 133 उसकी पहली आयत, दूसरा असूल हम देखेंगे कि बरकत के लिए दूसरा असूल क्या है, क्योंकि जब तक हम बाइबल के असूलों पर नहीं चलेंगे हम बरकत नहीं पा सकते। देखिए यह भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है। 133 ज़बूर की पहली आयत में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। मिलकर चलना ये एक मुश्किल काम है। चाहे आप अपनी फैमिली के सेटअप को देख लें, चर्च के सेटअप को देख लें, किसी आप समाजी सेटअप को देख लें, कहीं पे भी देख लें, मुल्की सतह पर देख लें, सियासत में देख लें, किसी भी चीज में हम किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम मुत्तफिक नहीं होते, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम किसी भी चीज में मुत्तफिक नहीं होते। और ये कितनी खुशी की बात है, अच्छी बात है कि भाई मिलकर, वहां मिलकर हम आहंगी के साथ, यूनिटी के साथ रहें। ये मुश्किल काम है, ऐसा होता नहीं है। किसी सतह पर आपको तजर्बा हुआ, फैमिली में अपने बच्चों में देख लें, अगर हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, आप देख लें उनका मेंटल लेवल चेक कर लें, किसी एक बात पर वो मुत्फिक नहीं होंगे। एक छोटी सी बात है, आज हर बच्चा अपनी ही उसकी जो ख्वाहिश है, जिस तरह वो करना चाहता है, जो उसका माइंड सेट है, वो वही चीज पसंद करेगा। आप इनको एलईडी का रिमोट पकड़ा दें, कभी ये एक प्रोग्राम पे मुत्फिक नहीं होंगे। इनका अपने अपने प्रोग्राम माइंड के अंदर सेट है, उसके मुताबिक ये चलने की और उस रिमोट को अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, मुत्फिक नहीं होंगे। इनके पास अपने स्मार्टफोन होने चाहिए, अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए, अपनी अपनी सोच के मुताबिक। चर्च में भी लीडरशिप से लेके कलीसिया तक लोग मुत्फिक नहीं होते, मुख्तलिफ जहनों की मेंटालिटी के लोग होते हैं। लेकिन बरकत का असूल जो खुदा ने असूल रख दिए हैं, खुदा उन्हीं असूलों पे बरकत देता है। आमीन। और दूसरा असूल क्या है? इत्तेहाद है, हम आहंगी है, यूनिटी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर मियां बीवी मुत्फिक नहीं होंगे तो बरकत नहीं आएगी। आप बहुत से खानदानों को आप देख सकते हैं, अगर दोनों मियां बीवी मुत्फिक नहीं हैं तो उनके बच्चे कभी भी ठीक नहीं हो सकते, चाहे उनको जितनी मर्जी एजुकेशन दिला दें। क्योंकि जो बाइबल का असूल है उसको हमने रिफ्यूज कर दिया और हमने सोचा कि अगर ये पीएचडी कर लेगा तो पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ा लिखा जहन जो है वो बड़ा अच्छा जहन होता है। दुनियावी एजुकेशन कभी भी उस चीज पे नहीं ला सकती जो बाइबल के असूल हमें लेके आते हैं। आमीन। दूसरा असूल क्या है? हम आहंगी है। किसी भी कौम की बरकत और खुशहाली के लिए दूसरा असूल जो है, हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, मुत्तफिक होके चलना है। तीसरी बात, तीसरा असूल सरपरस्ती, जिम्मेदारी और मेहनत। ये 3 चीजें बहुत अहम हैं तीसरे असूल में। इंसाल 10वां बाब उसकी 4थी आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये फर्दन आज का पैगाम जो है वो ना कि सिर्फ एक कौम के लिए, हम कौम के अंदर भी हैं, हम शख्सी तौर पे भी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं जो हमारी तरक्की के लिए और सरफराजी के लिए है। जी, जो ढीले हाथ से काम करता है वो क्या होता है? उसके साथ कंगाल हो जाता है। मेरी चीजों,
आप कंपैरिजन कर लें अपने साथ और किसी दूसरे के साथ, अपने मुल्क का और दूसरे मुल्कों का, दूसरे ममालिक में आप कंपैरिजन कर लें कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, हर टाइम मेहनत करेंगे, हर टाइम काम की बात करेंगे। सबसे ज्यादा फ्री मशवरे और टाइम वेस्ट ये हमारे यहां है। हम टाइम वेस्ट करने में पीएचडी हमने की हुई है, टाइम वेस्ट करने में, जाया करने में हमारे पास बहुत खुला टाइम है, बहुत टाइम होता है। हम बैठे, आप देख लें हमारे बुजुर्ग जिनको कोई इबादत करनी चाहिए, प्रस्तिश करनी चाहिए, वो ताश का ग्रुप बना के ताश खेल रहे होते बड़े मजे से। सिर्फ उनको खाने के टाइम बाजी खाना खाना, फिर जाके ताश खोल ली। मेरे शिशु, आप देखें जो कौमें आज दुनिया में कामयाब हैं, उनके बच्चों से लेके बड़ों तक सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, हम कहते हैं कि हमें जो है हम उस कौम के बराबर हमें होना चाहिए। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। जो बाइबल हमें सिखा रही है उसके मुताबिक जो है, जो ढीले हाथ से आप देखें कि आज बच्चों में इतना, आप उनको को काम कह दो, उनका चेहरा आप काम कहने के बाद आप देख लो, उनकी फेस रीडिंग कर लो, आप उनको काम कह लो, उनका मुंह ऐसे ही लटक जाएगा जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल से, आप कहते जी पानी के ग्लास में पानी पकड़ा दो, पानी लाने में उनका आप चेहरा नोट कर लें कि वो इतने ढीले हाथों से कई दफा तो ग्लास ही तोड़ देते हैं। ये एक मैं कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल बता रहा हूं जजमेंट के लिए, आप नोट करें। आज एनालिसिस करना है, रिलाई करना है, अपने आप को देखना है हम कहां पर हैं। हम सिर्फ नारे लगाना काफी नहीं है, झंडियां लहरा लेना काफी नहीं है। जश्न आजादी, आजाद हम तब होते हैं जब इन चीजों से निकलते हैं। अगर हम इन्हीं चीजों में तो हम आजाद नहीं हैं। सुस्ती के भी हम गुलाम हैं, कहली के भी हम गुलाम हैं, ढीलेपन के भी हम गुलाम हैं। तो हम कहते हैं जी हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत सारी चीजों में आगे हैं, आप नंबर 1 पे हैं दुनिया में, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ढीले हाथ से काम करने वाला क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। लेकिन जो मेहनती है वो क्या करेगा? मेहनती हाथ क्या होगा? मेहनती का हाथ उसको क्या करेगा? दौलतमंद बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। रात को मैं साउंड सिस्टम के लिए माइक्स ठीक करवाने गया तो वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बेटा आप भी अपने ताया जी के साथ बैठ के काम किया करें, काम सीखा करें। कहते नहीं, मुझे मेरे पापा ने कहा कि मैट्रिक करके तो फिर काम करना है। तो मैंने कहा मैं तेरे पापा से मिलूंगा, मैं उससे सवाल करूंगा उनसे कि क्या आपका बेटा 24 घंटे पढ़ता है? अगर 24 घंटे पढ़ता है तो आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, वो तो टॉप करेगा पूरे पाकिस्तान में। उतनी देर में वालिद साहब भी आ गए। मैंने कहा जी आपका बेटा 24 घंटे पढ़ता है? नहीं जी ये तो वारा बड़ा फिरदा है। तो मैंने कहा जो मैं मशवरा मैंने आपको दिया है कि ये इधर बैठ के कोई मैकेनिकल काम सीख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख ले। आपको पता है कि चाइना में छोटे बच्चे स्कूल गोइंग 8 क्लास 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो आप जो एलईडी देख रहे होते हैं वो बना रहे हैं। क्या उनकी मैट्रिक नहीं होती? क्या उनकी एजुकेशन नहीं होती? क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना लाड से, इतना उनके पेपर है नहीं जी उन्होंने पेपर है ना चर्च नहीं आ जाना, यूथ वाले ने बुला लिया, नहीं जी पेपर है पढ़ रहे ने। थोड़ी देर बाद कोई वैसे दोस्त बुलाना आया, चलो गैस लैन चलिए भाई फिरन जाना। बेटा जा तेरा दोस्त आया तो नाल जाके जरा गैस ले आ। हम लोग खुद मेंटल लेवल्स पे अपने बच्चों को इतना हमने खराब कर दिया हुआ है कि अब उस लेवल पे जाने के लिए ना तो बाइबल के असूल तो बड़ी दूर की बात है, वो वैसे की बुजुर्गों के असूल नहीं अपनाते। बाइबल के असूल जो है वो अपनाने से हमारे बच्चे जो है वो कामयाब हो सकते हैं, हमारी कौम कामयाब हो सकती है। और उसके लिए असूल क्या है? सरप्रस्ती। किसी की लीडरशिप में चलने के लिए हम तैयार नहीं है। लीडरशिप जो है ये बहुत जरूरी है। किसी भी काम को आप उसको करना चाहते हैं तो आपको एक लीडर की जरूरत है।
और अच्छे लीडर का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और फिर लीडर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज खानदानों में देख लें, कौम की तो बहुत दूर की बात है, खानदानों में जो है अगर कोई सरबराह घर का जो है उसको पता ही नहीं है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है, सरबराह की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। सरबराह ने कहा नहीं इधर जाना, नहीं नहीं जी ऐसे इधर जाना। वो चर्चिज में इत्तेफाक नहीं हो रहा कि एक चर्च के जो मेंबर है, खानदान है, उनके अपनी अपनी लीडरशिप में उनका अपना अपना चुनाव है। इस बात पे मुत्फिक नहीं है कि हमारा घर का सरबराह कह रहा जी हमने एक ही इसी चर्च में जाना है। बच्चों की अपनी राय है, मिसिस की अपनी राय है, हर एक की अपनी राय है। तो जब तक यूनिटी नहीं होगी, बाइबल का असूल नहीं आएगा, बरकत खुशहाली नहीं आ सकती। सरप्रस्ती बहुत जरूरी है। फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए हम ऐसी कौम है, हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। फेल हो गए, लो जी अब्बे ने मुकम्मा तलाई रखे, फेल हो गए तो अब्बे ने फेल करवाता है। अम्मी कहती सी तुसी जी ਉਹ सौदे लैके आओ, समान लैके आओ, तो मैं तो सारा दिन है काम करता नहीं। अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, मेहनती नहीं है, काम नहीं करना चाहते। बस एक ही काम है कि बस आज छत खुल जाए तो बस ऊपर से कुछ नाजिल हो जाए। जो कौमें मेहनत करती हैं वो कामयाब होती हैं। आमीन, हालेलुया। उनकी एग्जाम्पल आप आज नेट पे सर्च करें ना, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। सक्सेसफुल कौमों को आप सर्च करें, फाइंड आउट करें, और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आप देखें कि वे कैसे कौमें बरकत पाई है उन्होंने। मैं कोरियंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। कोरियन जो है बहुत कामयाब और मेहनती लोग हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं मेरे जीजो। उसके बाद चौथा असूल है अमाल 20 बाब उसकी 35 आयत खुदा की खादमा पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। चौथा असूल है सखावत और हमदर्दी। अमाल 20 बाब की 35वीं आयत। अमाल 20 बाब उसकी 35 आयत। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी खुदावंद की बातें याद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? देना लेने से क्या है? मुबारक है। तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरह से दूसरों से छीनते रहें, चुराते रहें, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा प्लान सोचें, चाहे वो कारोबार है या कोई भी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बंदा कहता है पौलुस रसूल के खुदावंद की बातों को, यीशु मसीह की बातों को खुदावंद यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि हमने क्या करना है। हमदर्दी सिर्फ हम बातों की हमदर्दी में ना रहें, अगर हो सकता है तो किसी की मदद कर सकते हैं, सखावत कर सकते हैं तो जरूर करें। आप देखें खुदा ने कहा कि तेरे पास अगर 2 कुर्ते हैं तो क्या कर, एक दूसरे को दे दे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हैं दूसरों के भी कुर्ते जो है ना वो छीनने के चक्कर में होते हैं। अपने जाएगा टिड्डियां खराब कर दें, बाद से पता चले जी ये नवा ही रखे ऐसी कट लग गया। हमने अपने जहन को चेंज करना है। आप देखें कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा हेल्प करें, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में बाइबल का असूल अपने अंदर रख लें कि आपके पास जितना है उसमें से किसी दूसरे शख्स के लिए आप जितनी कैपेसिटी है, जो कुछ आपके पास है, आप उसको उसमें से शेयर करें, क्योंकि ये मसीह खुदावंद की तालीम है और उसने सिखाया है और करके दिखाया है। आमीन। तो हमने भी ऐसे करना है। उसके बाद 5वां असूल क्या है? मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत है।
मत्ती छठा बाब उसकी 33 आयत। पांचवा सूल है, पहले बादशाही तलाश करो। मत्ती छठे बाब की 33 आयत है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। अब देखें, बड़ी खूबसूरत तालीम है खुदावंद की कि पहले क्या करना है, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। ये हुक्म है, पहले क्या करो, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो। ये एक असूल यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है कि पहले क्या करना है, तरतीब क्या है इसमें, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हम इसके उल्ट चल रहे होते हैं, हम पहले चीजों की लिस्ट हर वक्त हमारे माइंड के अंदर रहती है, हम ये भी हासिल कर लें, हम ये भी हासिल कर लें, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, और हम उसकी बादशाही के लिए, उसकी रास्तबाजी के लिए उतनी तड़प हमारे अंदर नहीं होती, उतनी जुस्तजू हमारे अंदर नहीं होती, उन चीजों की आरज़ू कम होती है। और दुनिया की चीजों को जब हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, जब खुदा वादा कर रहा है तो ये सब चीजें तुमको क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तुम्हें पहले क्या करना है, उसकी बादशाही को तलाश करना है। आमीन। मेरे चीजों, जब आप बरकत पाना चाहते हैं तो पहले आप सोचें कि हमें खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। फिर आप देखें खुदा की बरकत जो है वो ठहरना शुरू हो जाएगी, ये सब चीजें मिलती जाएंगी, इनाम में मिलती जाएंगी, खुदावंद अपनी बरकत के साथ देता जाएगा। छठा असूल जो बहुत जरूरी है, छठा असूल तब दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत आप नोट कर लें। खुदा की खादमत दरख्वास्त करूंगा कि इस आयत को पढ़ें। छठा असूल आजिज़ी और दुआएं। दूसरा तवारीख 7वें बाब की 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद क्या करता है 7वें बाब की 14वीं आयत में, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो क्या करें, खाकसार बनकर दुआ करें। आज मेरे चीजों खाकसार बनने की जरूरत है, खाकसार बन जाएं और मेरे दीदार के तालिब हों और फिर उसके बाद अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं क्या करूंगा, आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा, बहाल कर दूंगा। मेरे चीजों, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम की बहाली के लिए जरूरी है कि कौम बाइबल के असूलों को अपनाए, आजिज बने, इनकसारी और खुदा के हुज़ूर झुके, रोजे रखे, दुआएं करें, फिर मेरे चीजों काम हो सकता है। हम अपनी कौम की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, हम अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए किसी तरह से भी मुत्तफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारी सारी कौम मिल जाए, मुत्तफिक हो जाए, दुआ करें, रोजा रख लें, आजिज़ी करें, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें खुदा आसमान से, मेरे जीजो, आसमान खोल कर किसी भी तरह से, क्योंकि बाइबल में आप देखें कि जब असर के कौम साथ मिलकर रोजा रखती है तो क्या होता है, कानून चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। इस लेवल पे भी हम मुत्तफिक नहीं हैं। अगर आप किसी और लेवल पे भी देखें, किसी तरह भी हम मुत्तफिक नहीं होते, जिसकी वजह से हम किसी भी उस बड़ी ब्लेसिंग को नहीं पा सकते। इसके लिए जरूरी है आजिज़ होना, दुआएं करना, खुदा के हुज़ूर झुक जाना, गुनाहों की माफी मांगना। उसके बाद 7वां और आखिरी असूल, अक्लमंद क़यादत जो है, जो लीडरशिप जो अक्लमंद है, जो खुदा के फहम से चलती है,
खुदा उनको सरफराज करता है। इमसाल 29 बाब उसकी दूसरी आयत। जी पढ़े। इमसाल 29 बाब उसकी दूसरी आयत है। जब सादिक इकबालमंद होते हैं तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब शरीर इक़्तिदार पाते हैं तो लोग आहें भरते हैं। अब ये इस आयत को गौर से आप समझे जरा। जब सादिक इकबालमंद होते हैं तो लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन जब शरीर इक़्तिदार पाते हैं तो लोग आहें भरते हैं। मेरे चीजों, आहें भरने का फायदा नहीं है। हर बार लोग आहें भरते हैं, हर बार लोग रोते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ, हमें ये करना था, हमारे साथ ये हो गया। फायदा कोई नहीं है, क्योंकि लिखा है जो सादिक इकबालमंद होते हैं, जो सदाकत से चलते हैं, जो लीडरशिप सदाकत से, सच्चाई से, ईमानदारी से चलती है, वो उसके लिए उसकी कौम, उसके लोग खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहां हम देख लें कि शख्सी तौर पर लेके कौमी सतह पर देख लें, हर लेवल पे हम देख लें कि हम सिर्फ परेशान ही हैं। हम हर वक्त रोते रहते हैं, अपने आप पे तरस खाते रहते हैं, खुद तरसी खुद हंसी थी, ये चीजें हमारे अंदर काम कर रही होती है। ओहो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम बाइबल के असूल आज ही अपने अंदर रख लें और हम सोच लें कि हमने 7 असूलों पे चलना है, तो मेरे जीजों, हमारा खानदान, हमारी फैमिली, हमारा चर्च, हमारा मुल्क, किसी तरह से भी आप देख लें कि खुदा की बरकत जो है वो नाजिल होगी। आमीन, हालेलुया। तो 7 असूल जो हैं उनको मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, ज़हनशी कर लें। अच्छी बात है कि जो लोग नोट करते हैं बाद में भी हवालाजात को स्टडी कर सकते हैं, और सरमन को कोशिश किया करें कि आप डायरी में नोट करें। नंबर 1 पहला असूल क्या है? सदाकत, सच्चाई जो है वो किसी कौम की बहाली के लिए, सदाकत, सरबुलंदी के लिए सच्चाई जरूरी है। दूसरी बात, इत्तेहाद, हम आहंगी जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा असूल क्या है? सरपरस्ती, जिम्मेदारी और मेहनत। उसके बाद चौथा असूल क्या है? सखावत करना, हमदर्दी। और पांचवा असूल क्या है? पहले बादशाही की तलाश करना। और छठा असूल क्या है? आजिज होना और दुआएं करना। सातवां असूल क्या है? अक्लमंद क़यादत, जो अक्लमंद क़यादत है उसको फॉलो करना, और जो अक्लमंद लीडरशिप है वो अपनी कौम को आगे ले जाती है, अपनी कौम को तरक्की की तरफ ले जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, बतौर एक मसीही होने के नाते हमारा फर्ज क्या है? क्योंकि हमारा फर्ज है, क्योंकि हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में खुदा ने हमें रखा है। ये सवाल हमारे साथ रहता है कि हम ये फर्दन फर्दन सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ। ये हर शख्स सोचता है, लेकिन मैंने इस सवाल का जवाब अपने खुदा से पाया। मैंने खुदा से इसी तरह सवाल किया और करता ही रहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको भी इसका जवाब पता होना चाहिए कि आप इस मुल्क में, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में आप पैदा हुए हैं, तो खुदा ने आपको क्यों रखा है यहां पर। मेरे अज़ीज़ों, बतौर ईमानदार, बतौर एक मसीही, एक प्योर क्रिश्चियन, आप अपनी कौम के लिए दुआ कर सकते हैं, खुशहाली और तरक्की का बायस हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को किसी भी जगह पे रखा है तो बरकत के लिए रखा है, ताकि आप मसीह की गवाही को अपनी जिंदगी में रखते हुए दूसरों के लिए नमूना बने। हालेलुया। क्योंकि हमें दूसरों की तरह किसी दूसरी जिंदगी को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमने दूसरों के लिए नमूना बनना है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आला हुकूमतों के ताबे रहें और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें कि खुदावंद हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को बहाल करे, खुशहाली बख्शे
اور جو خدا کے اصول ہیں فردن فردن ہم اس کو فالو کریں تاکہ ہم خدا کی برکت پا سکیں. گاڈ بلیس یو.